Please give us. Okay. Deepika, what is your surname? Nisha, my surname is Shukla. Okay, Deepika, your verb is spoil. That is बर्बाद करना. Okay. I think it's done na. Spoil. Spoil. That is बर्बाद करना. It's done the day before one day. Okay. रूपल जी, हाँ sorry नेहा, your Uh, what is Nisha, your Nisha, first give me my verb. okay. दीपिका spoil. That is बर्बाद करना. वर्ब. Spoil verb is done na. It will do दीपिका, शायद उनके पास होगी नहीं और फिर ये परसों दी गई थी, कल नहीं थी, है चलो ना? ठीक. ओके ओके ओके. ओके नो प्रॉब्लम. ठीक. नेहा, what is your surname? D. My surname is Patel. Okay, your verb is worship. That is पूजा करना. Okay. Okay, Sorry, come again. worship. That is पूजा करना. No, 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 no. How are you distributing? Okay, Which नेहा. process are you taken? रूपल जी, what is your surname? My surname is Agarwal. Your verb is make. That is banana. दीदी आप सरनेम पूछ रही हो तो ऐसे पूछ फिर नाम के साथ बोलो ना कि आपके पास ये है. जैसे आपने रूपल जी का सरनेम पूछा तो उनके बाद उनका पूरा नाम लो फिर उनको वर्ब दो. जैसे रूपल अग्रवाल योर वर्ब इज. Okay, शिवांग, sorry. तो दीपिका से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा. नो इट विल डू नाउ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट. ओके रूपल जी, ठीक है ना. रूपल जी, what is your surname? My surname is Agarwal. Okay. रूपल जी, रूपल अग्रवाल, your verb is make. That is banana. Shivang, what? Sorry, Shivang, what is your surname? My surname is Dubey. Shivang Dubey, your verb is have a walk. That is पैदल Didi, चलना. it is done yesterday. It is done yesterday. You can give Which me one? have a Which walk. one, Nisha? Have a walk. Have a walk. Oh, please change. Okay, last day. That's why. Okay. Uh, your verb is poke. I give this one poke na. Poke. हाँ, that is बाधा It is डालना. it is also given yesterday. I got this verb yesterday. Okay. तो शिवांग, go on. Bowl. Go on. That is चलना. Bowl. Okay. Sorry. अच्छा, go on. Okay. नेहा, what is your surname? और नेहा का हो गया, नेहा done. निधि, what is your surname? My surname is also Patel. You are Patel and I am Patel. Nidhi Patel, your verb is work. That is नहीं sorry guess. That is अनुमान लगाना.
Okay, thank you. Nidhi, Roshni, what is your surname? My surname is Patel. Roshni Patel, your verb is work. That is कार्य करना. Work. Work. That is कार्य करना. निधि तिवारी. Sorry? निधि तिवारी. अच्छा, okay. निधि तिवारी is not here. Okay. नम्रता. Okay, my verb is ran. come again. That is Sorry, verb. your pronunciation is wrong. It is rain. Read is Rain. done. Read is Rain. done yesterday. No? Rain. No, read is done. This was given for Nidhi Tiwari Didi. बट शिवांग मैं ना सॉरी मैं yesterday नहीं थी प्लीज. Okay, it will do. No. शिवांग, it will do यार. वो नहीं थी. She was absent yesterday. That's why. है ना? Okay. So Nidhi Didi, there is my verb is go on. How I can make with this verb? Go on. This is होना, चलना. Firstly, who is ready? आई एम रेडी. रेन. Sorry. It can rain day after tomorrow. Your verb is rain. Yeah, R-A-I-N, rain. Rain बारिश होना. I think read is your verb. Okay, but sorry because you are making in affirmative. Okay, come again, Nisa. It can rain. Sorry. We want to make inverted sentence, not affirmative. We have to make inverted. Yes, we have because yesterday we have na. Yeah, that's why. Okay, Nisa. We have to Keep make patience. inverted sentences. Huh? Keep patience, Nisa Didi. Firstly, listen somebody else. It can not. Sorry. Sorry, have to please make keep inverted, patience. please. है ना? Keep You was absent yesterday. That's why. Please listen. Then you can make. है ना? का दीदी लिख रही हैं. What are you writing, Deepika? लिख लो. मैं मेरा सेंटेंस बना रही हूँ. It is is not not. appropriate, है ना? हाँ. पेन छोड़ Who is दो. ready? I'm ready. Didi, inverted sentence na? Okay. Can everyone worship? क्या सभी लोग पूजा कर सकते हैं? Sorry. हिंदी sentence यार. सभी लोगों को पूजा सभी लोग क्या सभी लोग पूजा कर सकते हैं? What is your subject? सभी लोग एवरीवन सभी लोग पूजा कर सकते हैं. क्या सभी लोग Everyone. पूजा कर सकते हैं? Your subject is everyone. Sorry. everyone can everyone worship? क्या सभी लोग पूजा कर सकते हैं? Your Hindi is wrong. Your Hindi subject right. is wrong.
In Hindi, No, your subject is wrong. no subject is right, Shivang. It is working. But Everyone. see, हाँ everyone. तो everyone का सब्जेक्ट हिंदी कुछ और होता ना. नहीं, it is working, Shivang. But she is saying सभी लोग. It is not working, है ना? It is not appropriate. तो सभी लोग दीदी, सभी लोग तो हिंदी का वो है सब्जेक्ट. No, she is saying everyone. That is In English, she is right. हाँ. But in Hindi, Hindi is wrong. yeah, because she is using सब लोग unnecessary. सब लोग पूजा कर सकते हैं. What is the Hindi meaning of everyone? एवरीवन सभी सभी लोग सब लोग सभी लोगों को. Nia, please keep patience, है ना? Firstly Okay. listen, then you can make, है ना? Okay. Who is ready? I'm ready. आपने लिख के बनाया है, हम बिना लिख के बना रहे हैं. आप लोग को अच्छा नहीं, शिवांग- मैंने वो कट कर दिया. शिवांग, please मैंने बना बनाया लेने दो. Shivang, please. चला. Ladies first. Ladies first. Can anyone spoil your child? क्या कोई आपके बच्चे को बर्बाद कर सकता है? Could anyone spoil your child? क्या कोई आपके बच्चे को बर्बाद कर सकता था? Should anyone spoil your child? क्या किसी को आपके बच्चे को बर्बाद करना चाहिए? There. Shivang, it's your go. Okay, my verb is go on. That is होना या चलना. Can the round go on with process? क्या राउंड प्रोसेस के साथ चल सकता है? Could the round go on with process? क्या राउंड प्रोसेस के साथ चल सकता था? Should the round go on with process? With the process. क्या राउंड को प्रोसेस के साथ चलना चाहिए? I am ready. My verb is work. That is कार्य करना. Can she work her office? क्या वह अपने ऑफिस का कार्य कर सकती है? Come again, Rosni. I could not listen. Can she work her office? क्या वह अपने ऑफिस का कार्य कर सकती है? Sorry, Right. the position is missing. Can she work? Can she work off her office? Sorry. Can she work her own office? Sorry. ठीक है, नेक्स्ट. You can say pass. दीदी I'm ready. You should say pass. आई एम रेडी. कैन एवरीवन वर्शिप? हर कोई पूजा कर सकता है. Sorry, Nia. You are making inverted. Hindi Can. is wrong. क्या हर कोई पूजा कर सकता है? कुड एवरीवन वर्शिप? क्या हर कोई पूजा कर सकता था? शुड एवरीवन वर्शिप? क्या हर किसी को पूजा करनी चाहिए? हु इज रेडी? I am ready. Can it? Can it? They after rain. Can it rain? Day after tomorrow. Sorry. Come again.
Can it rain the day after tomorrow? परसों बारिश हो सकती है क्या? सॉरी क्या सॉरी सॉरी जी could it could it rain the day after tomorrow? क्या परसों बारिश हो सकती थी? Can should it सॉरी सॉरी प्लीज कीप वन चैप्टर है ना. can ओके कैरी ऑन. सॉरी कैन इज डन. sorry should should it rain the day after tomorrow? क्या परसों बारिश होनी चाहिए? Who is rest? आई एम रेस्ट. माँ बाबा इज गैस दैट इज अनुमान लगाना. मोदी जी कैन गैस आई विल बी पीएम अगेन. मोदी जी अनुमान लगा सकते हैं मैं फिर से पीएम बनूंगा. Is it Modi. a inverted Oh, sentence? yeah, sorry. I am making inverted. Can Modi ji guess? I will be PM again. क्या मोदी जी अनुमान लगा सकते हैं मैं फिर से पीएम बनूंगा. Could मोदी जी guess I will be PM again? क्या मोदी जी अनुमान लगा सकते थे मैं फिर से पीएम बनूंगा. सो मोदी जी गैस पीएम अगेन. क्या मोदी जी को अनुमान लगाना चाहिए मैं फिर से पीएम बनूंगा. डन. आई एम डन. हु इज रेडी? I'm ready. Nidhi. Okay. My Sorry रूपल जी. Sorry to यस interrupt. यस दीपिका. निधि, क्या आपके दो सेंटेंस के बीच में दैट लगाना सही रहेगा क्या? एक्चुअली क्या है That I will ask to sir because पहले हम लोग लगाते थे बट दैट इज एक्चुअली राधा छाप दैट्स वाई. ये हिंदी मीडियम टाइप का होता है हर बात में दैट लगाना कि इट इज राइट ना शिवांग. आई एम आल्सो कंफ्यूज दीदी. ओके आई विल आस्क टू है ना सर है ना बिकॉज आई फॉरगॉट दैट्स वाई. पहले मैंने सोचा था कि लगाना चाहिए बट मुझे लगा कि शायद एक बार मना किया था सर ने कि नहीं मतलब काफी 2 इयर्स हो गए तो मैं भूल गई हूँ है ना. आई विल कंफर्म विद सर है ना. ओके रूपल जी प्लीज कैरी ऑन. my verb is work. नहीं sorry. My verb is make. That is banana. Can I make tasty pizza? क्या मैं टेस्टी पिज्जा बना सकती दीदी हूँ? चेंज द सब्जेक्ट प्लीज. रूपल जी प्लीज किसी और से बनवा लीजिए ना पिज्जा. कोई अच्छा सा सब्जेक्ट सोच के. ओके. जो नागपुर का फेमस हो पिज्जा वाला उससे बनवा लीजिए. कैन पिज्जा हट मेक टेस्टी पिज्जा? क्या पिज्जा हट टेस्टी दीदी, पिज्जा more- बना सकता है? बहुत टेस्टी कर दो. मोर टेस्टी. ओके. कैन पिज्जा हट मेक मोर टेस्टी पिज्जा? क्या पिज्जा हट और अच्छा
और अच्छा शिवांग, पिज्जा बना मुझे सकता है। मुझे तो ऑड लग रहा शिवांग ना, सर से अपन कंफ्यूजन दूर करें। ओके रूपल जी, कैरी ऑन, है ना। कुड, अब आई वाला रखूं कि पिज्जा हट वाला रखूं? रूपल जी आप कंप्लीट कीजिए प्लीज। कुड पिज्जा हट मेक टेस्टी पिज्जा? क्या पिज्जा हट टेस्टी पिज्जा बना सकता है? शुड, इट इज नॉन लिविंग ना, पिज्जा हट। इट इज वर्किंग शिवांग, है ना दीपिका? इट इज नॉट वर्किंग ना। नो। ये तो मतलब पिज्जा हट हाँ क्यों? पिज्जा हट इज ऑल्सो सब्जेक्ट ना। पिज्जा हट बिकॉज कैसे बनाएगा? वो कोई पर्सन थोड़ी ना है। पिज्जा हट हाँ पिज्जा बनता है। इट्स पिज्जा हट अ में इट्स पिज्जा अ बनता ब्रांड। है। इट्स अ ब्रांड, है ना। ओके सर आपको से बनाना कंफर्म है। कर लेंगे अपन लोग, है ना। रूपल जी आप कंप्लीट। हु हु इज इज रेडी? रेडी? हु ऑल इज आर रेस्ट? डन। Namrata is rest now. Namrata, are you there? She is not I there, am I ready. think. Okay. She can work her the office. वह अपने ऑफिस का सी कार्य सॉरी Sorry, Chelsea. रोशनी। नहीं आ रहा मुझे समझ में। प्रपोजिशन हटा दो, हम लोग लगवा देंगे। कैन सी वर्क हर ऑफिस? वह अपने ऑफिस सॉरी कम कार्य अगेन। कर सकती है। जी प्रपोजिशन लगवा दो। कम अगेन रोशनी, वन मोर टाइम प्लीज। सी कैन वर्क हर ऑफिस। वह सॉरी, अपने सीधे अफर्मेटिव। ए कैन सी वर्क हर ऑफिस? क्या वह अपने ऑफिस का कार्य पूरा कर सकती है? रॉन्ग। At preposition, Roshni, can I help her? ओके दीपिका प्लीज। In her office. इन हर ऑफिस, ओके। कैन सी वर्क इन हर ऑफिस? क्या वह अपने ऑफिस का कार्य पूरा कर सकती है? Sorry. ऑफिस अकॉर्डिंग टू में, इंग्लिश नाउ। सॉरी हाँ। ऑफिस में। क्या वह अपने ऑफिस में कार्य कर सकती है? ये आएगा। तो अपने ही ऑफिस में काम करेगी, दूसरे के में करने क्यों जाएगी? हमारा इट मतलब इज हिंदी ये था, क्या नॉट वह वर्क। अपने ऑफिस का कार्य कर सकती है, ये था हिंदी। पहले आप हिंदी सोचती हो, इसलिए तो आपका सेंटेंस गलत बनता है। उसके लिए सर ने एक बार बताया था, मदर्स सन्स नेम, डॉटर्स नेम, लाइक दैट। नो नो नो, आई एम सेइंग दैट। ऑफिस का काम कर सकती इसमें उसके अब लिए। ऑफिस में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा ना। Make it first, after that we will ओके। कैन सी वर्क इन हर ऑफिस? क्या वह अपने ऑफिस में कार्य कर सकती है? sorry, it will not do. इट इज नॉट वर्किंग ना। ऑफिस हिंदी हिंदी क्या
हिंदी सोचो मत, हिंदी सोचो ना। हिंदी नहीं सोचो, बिना हिंदी सोचे पहले इंग्लिश का तो बनाओ। पहले आपने हिंदी सोच ली सेंटेंस की, इसलिए आपका सेंटेंस अब गलत हो रहा है। किसी और के ऑफिस में कर सकती है। हाँ, अपने में तो करता ही है। अगर आप चाहो तो किसी और के में कर सकती है ना। अपने में प्लीज। तो करेगी ही करेगी, दूसरे के में साथ में जाके कर लेगी। नहीं आ रहा मुझे समझ में। सिंपल सा बना दो तो रोशनी प्लीज। कल सर ने एक बात बताई थी कि ईडियम का कर सकते हैं। अगर वैसा हो जाए तो एक बार थोड़ा सा थिंक अबाउट इट, आफ्टर दैट टेक योर टाइम। दीदी, मेक द सेंटेंस यू आर इट मेकिंग इज ईडियम्स आफ्टर। वर्ब ना। यस, यस, इट इज इडियम्स वर्ब। दैट्स व्हाई आई टोल्ड हर। कैन सी वर्क हिज वर्शिप? क्या वह पूजा कर सकती है? सॉरी। इट्स माय वर्ब। वर्शिप इज हियर वर्ब। इसकी हिंदी ये होगी ना, क्या क्या वह पूजा में काम कर सकती है? मुझसे नहीं आ रहा। आप वही वाला सेंटेंस बनाओ जो आप पहले बना रही थी। उसका क्या हिंदी गलत हो रहा है क्या? दीदी कैन आई मेक, बना के देख सकती हूँ। प्लीज वेट नेहा दीदी, फर्स्टली ओके। शिवांग, उसका हिंदी गलत हो रहा है। पहले आप अपना वही वाला सेंटेंस तो बनाओ। कैन सी वर्क इन हर ऑफिस? क्या वह ऑफिस में कार्य कर सकती है? हर की जगह हिज लगा दीजिए रोशनी। हिज कैन सी वर्क इन हिज वर्शिप? सॉरी, वर्शिप कहाँ से आ गई। सॉरी, ऑफिस। ऑफिस। कैन सी वर्क हिज वर्शिप? क्या वह ऑफिस में सॉरी, सॉरी फिर से प्लीज कम समझिए। अगेन। क्या वह इंग्लिश, योर इंग्लिश, कम अगेन। कैन सी वर्क इन हिज ऑफिस? क्या वह ऑफिस में कार्य कर सकती है? किसके। किसके? क्या वह अपने ऑफिस में कार्य कर सकती है? सॉरी आपने रोशनी। अपने सेंटेंस में आपने रखा है, क्या रखा था। क्या वह उसके ऑफिस में कार्य कर सकती है? सो देयर यू आर। क्या वह उसके ऑफिस में कार्य कर सकती है? हाँ, कुड कुड सी वर्क इन हिज ऑफिस? क्या वह उसके ऑफिस में कार्य कर सकती थी? हाँ, शुड सी वर्क इन हिज ऑफिस? क्या उसे। उसको हाँ, क्या वह नहीं क्या नहीं। दीपिका रुको भैया, की पैसे इतनी मदद मत कर, वैसाखी मत करना, डोंट, प्लीज डोंट बी वैसाखी। तो चाय लास्ट वाले का नहीं बन रहा। बनेगा, डोंट, बना के तो देखो। ट्राई अगेन प्लीज। क्या उसको ऑफिस में कार्य करना चाहिए? किसके। क्या नहीं आ रहा लास्ट वाले का, हिंदी गलत हो रहा। ट्राई अगेन प्लीज।
रोशनी बोलो, आप 90% सर सही हो। हाँ क्या मुझे याद किया? यस थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड सर। गुड इवनिंग सर टू थैंक यू ऑल फॉर ऑफ अपिया विथ अस। हाँ भाई, तो अर्ज कीजिए। क्या समस्या है बालक? बालिका। सर मेरा सेंटेंस सही नहीं बन रहा है सर। कैन कैन पिज्जा हट मेक टेस्टी पिज्जा? एब्सोल्युटली राइट। क्या पिज्जा हट टेस्टी पिज्जा बना सकता है? ऑफ कोर्स। गुड। अब हम आंसर भी दे देते हैं। यस, पिज्जा हट कैन मेक टेस्टी पिज्जा बिकॉज पिज्जा हट ऑलवेज यूजेस द फ्रेश डो। सबसे पहले तो आप अपने सीसी ऑन कर लें सब लोग, क्योंकि जो हम शब्द बोलेंगे वो गूगल तो ले लेगा, तो आप स्पेलिंग देख के समझ सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स पिज्जा हट कैन मेक टेस्टी पिज्जास बिकॉज पिज्जा हट uses the fresh dough. DOUGH. गुड पिज्जा हट मेक Just a टेस्टी minute. Complete the process. अच्छा बेटा, कोई बताओ कंप्लीट द प्रोसेस का क्या अर्थ होता है? पूनम, रूपल जी प्लीज हिंदी बोलिए इसकी। कंप्लीट द प्रोसेस। जो सर ने बोले हैं कि नहीं नहीं, मैं जो आपने इंग्लिश बोला है उसकी हिंदी बोलनी रूपल जी, बस दैट्स इट। क्या पिज्जा हट टेस्टी पिज्जा बना सकता है? हाँ, पिज्जा हट स्वादिष्ट पिज्जास बना सकता है क्योंकि वह फ्रेश यानी ताजा डो यानी आटे का प्रयोग करता है। गुड पिज्जा हट मेक टेस्टी पिज्जा? Yes, Pizza Hut could make tasty pizzas because they use fresh dough. क्या पिज्जा हट टेस्टी पिज्जा बना सकता था? हाँ, पिज्जा हट टेस्टी पिज्जा बना सकता था क्योंकि वे ताजे आटे का प्रयोग करते हैं। शुड पिज्जा हट मेक टेस्टी पिज्जा? Yes, Pizza Hut should make tasty pizza because they always use fresh dough. क्या पिज्जा हट को टेस्टी पिज्जा बनाना चाहिए? हाँ, पिज्जा हट को टेस्टी पिज्जाज बनाना चाहिए क्योंकि वे हमेशा ताजे आटे का प्रयोग करते हैं। इति श्री रेवाखंडे। नेक्स्ट। प्रथम अध्याय सर। समाप्त। रोशनी योर लास्ट कंफ्यूजन प्लीज टेल हिम प्लीज। दीदी मैं सब्जेक्ट चेंज कर दे रही हूँ, सब्जेक्ट में बहुत कंफ्यूजन हो रही है। नो नो रोशनी सर बेटा दैट्स व्हाई प्लीज। देखो, अब एक काम करते हैं। अप्रोच की बात है और मैं शिवांग के सुझाव से सहमत हूँ। शिवांग जो बार बार रोशनी से बोल रहा था वो चीज़ बिल्कुल सही है। वो मैं भी बार बार बोलता हूँ कि आपको एक वर्ब मिली है, आप उस वर्ब को देखिए, वो इंग्लिश में है। आपको एक सब्जेक्ट लेना है, वो भी इंग्लिश में है।
उससे मैच करता हुआ एक ऑब्जेक्ट आपको रखना है या एक एक्सटेंशन रखना है। हिंदी आपको कतई नहीं सोचना है। अब हम जो सेंटेंस रोशनी से बनवा रहे हैं, हमें यहाँ सबके लिप्स मूव होते हुए दिखना चाहिए। रोशनी हमारे साथ बोलेगी अनम्यूट में, लेकिन बाकी सब भी बोलेंगे, हम देखेंगे सबके लिप्स मूव हो रहे हैं। नहीं तो हम 3 का दंड दे देंगे। रोशनी हमारे साथ बोलो। कैन कैन शी सी वर्क वर्क राउंड द क्लॉक? राउंड द क्लॉक? क्या वह दिन रात अथवा 24 घंटे काम कर सकती है? 24 घंटे काम कर सकती है। आप सभी का धन्यवाद। जिनके होंठ हिल रहे थे उनका भी धन्यवाद, कुछ लोग केवल सुन रहे थे उनका भी धन्यवाद। फिर दूसरा सेंटेंस बोलते हैं। कुड शी वर्क इन मल्टीनेशनल कंपनी? मल्टीनेशनल कंपनी? क्या वह अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम कर सकती थी? तीसरा सेंटेंस भी सभी लोग बोलिएगा। शुड शी वर्क ऑनेस्टली? क्या उसे ईमानदारी से कार्य करना चाहिए? दोस्तों, हमने केवल एक्सटेंशन तीनों बार बदल दिए। अब इस तरह के शब्द रखने के लिए एक सामान्य अप्रोच जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा आसान है वो है टीवी। आप टीवी में कोई सा भी प्रोग्राम देखिए दोस्तों, हम आपसे बिल्कुल कभी अभी तक नहीं बोले, ना आगे कभी बोलेंगे कि आप फलाना प्रोग्राम देखिए या ढिकाना देखिए। नहीं, आप जो कार्यक्रम देखते हैं, जो सीरियल आपको पसंद है, आप न्यूज़ देखते हैं, आप डिस्कवरी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसे ही देखिए। लेकिन उसको आज के बाद इस नज़र से देखिए कि उसमें बीच बीच में जो अंग्रेजी आती छोटी छोटी, जिसके साथ हिंदी का भी प्रयोग वो करते हैं। आमतौर पर महिलाओं के जो सीरियल होते हैं उसमें बहुत कठिन अंग्रेजी का प्रयोग वो नहीं करते, तो उसको नोटिस कीजिए। सर, इसी बात पे कल मैं पुराना अनुपमा सीरियल देख रही थी। उसमें वो बता था सिनेमन और कार्डम को कूट के लेके आना है, और उसमें लिखा था डॉग से है नीचे। रॉन्ग इंग्लिश लिखी रहती कई बार उसमें, डॉग से हेयर लिखा हुआ था उसमें। मैं इतना नहीं दिमाग लगाती थी, बट मेरा बेटा साथ में बैठा हुआ था, वो बोला देखो मम्मी इसमें गलत लिखा हुआ है, डॉग से हेयर लिखा हुआ है। इसका कारण हम आपको बता देते हैं, क्योंकि मैं इस फील्ड में थोड़ा सा जुड़ा रहा मीडिया में, इसलिए मैं इसका कारण बता सकता हूँ। जो विदेश की चीज़ें आती हैं दोस्तों, विदेशी सीरियल वगैरह आते हैं, वो बॉम्बे में आके डब होते हैं। ये आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो अब जान लीजिए। उसमें भाषा बदली जाती है, और वो जो सबटाइटल्स आते हैं जो नीचे चलते हैं, जो अभी आपकी स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, तो ये तो सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोमेटिकली ले रहा है। लेकिन वहाँ पे जो इंग्लिश उसमें नीचे लिखी आती है, वो मेरे जैसा कोई व्यक्ति, आपके जैसा कोई व्यक्ति बैठ के टाइप करता है। अब इट इज कॉल्ड ह्यूमन एरर।
इसे इंसानी गलती कहते हैं। जो टाइप करने वाला है उसकी उंगली इधर से उधर, क्योंकि वो वहां पे बहुत तेजी से चलता रहता है, और आपने नहीं देखा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो नीचे नहीं देखता है, वो वहां देखता रहता है क्या बोला जा रहा है, वो नीचे ऊपर देख के नीचे टाइप करता है, क्योंकि वहां उन लोगों को भर्ती किया जाता है जिनकी स्टेनो की स्पीड 80 या 100 120 होती है, उनको भर्ती किया जाता है, उनको 10,000 15,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो वो लोग टाइप करते हैं। तो कई बार हमसे भी अपने से खुद से, कई बार हम खुद जब टाइप करते हैं तो हम देखा होगा कि एक लेटर की जगह दूसरे पे गलती से उंगली चली जाती, हमसे भी ऐसा ही होता है। तो वहां बैठा व्यक्ति भी एक इंसान है, उससे भी कभी कभी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कभी ट्रांसलेशन की गलती संभव है, इसलिए वो, लेकिन अभी बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं, मैंने देखा है। आप भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको क्लिक बस करना होता है। हालांकि आप लोग वीडियो अपलोड नहीं करते, हमारी श्रीमती जी ये जो वीडियो अपलोड करती हैं तो उसमें कभी कभी ऑप्शन आता है, वो ऑटोमेटिक लेता है। और मैं गाने सुनने का शौकीन हूँ, तो मैं एक गाना सुनता हूँ, मैं आपको उसको डाउनलोड करके आपको पोस्ट करके आपके इसमें ग्रुप में भेजूंगा। उसमें एक सॉफ्टवेयर है जिसमें उस गाने का पहले ऊपर उर्दू लिखा हुआ आता है, उसके नीचे हिंदी में वो जो गा रही हैं वो लिखा हुआ आता है, फिर उसकी मीनिंग लिखी हुई है, वो पूरा सॉफ्टवेयर लेता है। तो ऐसे में कम गलती होने की गुंजाइश रहती है। चलिए इस बात को विराम देते हैं, आगे बढ़ते हैं। और किसी को कहीं कोई समस्या है? सर मुझे कल मैंने इनवी लगा के देखा था अपनी सेंटेंस में, तो शिवांग ने ऑन रखवाया था मंथली, मैंने ऑन मार्च रखा था सर। अभी हमें वो याद तो नहीं, जब तक तुम पूरा दोहराओगी नहीं तो हम समझ नहीं। सर मैंने शायद कोविड-19 रखा था। नहीं, शायद से नहीं, जब तक तुम सेंटेंस नहीं बोलोगी हमें क्लियर थोड़ी होगी। कोविड-19 चलो जब याद आए तब लिख के भेज देना, हम उसमें सुधार देंगे। ओके सर। और कहीं सर मुझे याद है। हाँ, इरशाद। नेहा का सेंटेंस, कैन कोविड-19 कम बैक ऑन मार्च, तो आपने बोला था कि मंथ के साथ इन लगता है। इट्स ऑल्सो अ ह्यूमन एरर, हम लोगों ने लगवाया था ऑन, सभी ने मिलके, विच इज रॉन्ग। फर्स्टली सी कीप्ड बाय मार्च है ना? हाँ फर्स्टली, यस दी फर्स्टली। आज एक निधि का भी सेंटेंस था, अभी दो लोग एक साथ बोल रहे थे बेटा, तो हमें नहीं सुनाई दिया, कम अगेन। फर्स्टली मैंने, अच्छा नहीं हो क्या सर मैंने बाय मार्च रखा था, तो बाय मार्च क्यों नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, लेकिन अर्थ बदल जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा मार्च तक। सर तक ही बोला था मैंने। तो फिर ठीक है। बाय तो आजकल लेटेस्ट है, इंग्लिश मीडियम वाले बहुत यूज कर रहे हैं, देख लेना। जी सर मैंने बाय का ही यूज किया था, तो दीदी लोग ने बोला कि ये इट इज नॉट वर्किंग। तो अब हम अतीत को नहीं सुधार सकते, कल कोई दूसरा सेंटेंस बनाना तो तुम अपनी मर्जी से उसमें बाय लगा देना। ओके थैंक यू सर। सर मैंने एक सेंटेंस बनाया था, मोदी जी अनुमान लगा सकते हैं, मैं फिर पीएम बनूंगा, तो सर इसमें की रखना जरूरी है? दैट नहीं जरूरी। वही दीपिका मुझसे पूछ रही थी कि दैट तो हम सर ये मतलब वो हिंदी मीडियम टाइप लगता है क्या, ऐसा मुझे शायद याद है। हाँ हमने कई बार बताया कि तुम अपना जरा सेंटेंस बोलो, हम उसको बोल के फिर दिखा। मोदी जी कैन गैस आई विल बी पीएम अगेन। हाँ तुमने इन्वर्टेड नहीं बनाया, हमने इन्वर्टेड के लिए बोला था।
नो सर, फिर इन्वर्टेड बनाया था। कैन मोदी जी गेस आई विल बी पीएम अगेन। हाँ क्या मोदी जी अनुमान लगा सकते हैं मैं फिर से पीएम बनूंगा, फिर पीएम बनूंगा। ओके। अब हमने जो भी बोला होगा निधि तुम्हारे जहन में हल्का सा है तो वो हम क्लियर कर देते हैं। ये हमने तब बोला होगा जब तुम लोग के 5-6 महीने हो गए होंगे, तब बोला होगा। तब हम ये सुझाव देते हैं। शुरू में तो हम दैट लगवाते हैं, अब हम उसको बोल के बता रहे हैं। अगर आपको दैट लगाना है तो अगर आप इस तरह से लगाते हैं, इसको देखिएगा कैसे। वेल मनु, कैन यू गेस दैट मोदी जी कैन बी द पीएम अगेन। अब इसमें इतने हल्के से हमने लगाया कि गूगल भी नहीं पकड़ पाए। आप देखिए, या तो इतना फ्लुएंट आप लगाएं, कैन मोदी जी गेस दैट ही कैन बी द पीएम अगेन, कैन मोदी जी गेस दैट ही कैन बी द पीएम अगेन। इस बार लगाया उसने, हमने अपनी स्पीड को कम किया। तो या तो आप इतने फ्लुएंट हो जाएं, तब पता ही नहीं चलता कि आपने दैट लगा दिया। जी सर, मेरे को मतलब मैंने पर्पसली ही पूछा था, जानबूझ के पूछा था, क्योंकि मेरे को डाउट था। गुड, तुम पर्पसली का यूज करने लगी। ये हमने कहीं लिखवाया नहीं है, एक दो बार बोला। सर उस दिन मैं आई थी, मैं फोटो क्लिक करके गई हूँ कई सारी, उसमें था। हाँ, वाह, वेरी गुड। वो बाहर जो ऑफिस एरिया में है, वेरी गुड। आजकल हम सुबह के बच्चों को बाहर ठंड में बैठ जाते हैं आके, क्योंकि बच्चे क्या है, बोल दिया कि यहाँ बैठना है और ये ग्रीन बोर्ड रखा है, इसमें से जो कुछ लिखना है लिख लो। इसके अलावा एक आपका हैप्पी बर्थडे वाला भी था, उसमें प्रीपोजिशन बहुत सारे थे, वो फोटो क्लिक कर ली थी मैंने। वो एक्चुअली व्हाट्सएप से ही निकाला था हमारे स्टूडेंट ने। व्हाट्सएप पे इमेजेस, एक सीनियर बैच है, हम मैडम से बोल देंगे तुम लोग को भी उसमें जोड़ देंगे। जिसको जुड़ना हो वो एक रिक्वेस्ट भेज देना मैडम को, क्योंकि कई लोग उसको बोझ समझते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा कचरा इकट्ठा होता है, फिर उसको डिलीट करते रहो पूरे समय। तो हम सबको नहीं जोड़ते हैं। वो बहुत सीनियर बैच है, उसमें 10-10, 15-15, 20 साल पुराने स्टूडेंट। तो कुछ लोग तो बहुत अच्छी चीजें भेजते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, लेकिन कुछ लोग फिर वही गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भी भेजते रहते हैं ऊटपटांग। तो अब आप किसी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन कभी कभी उसमें डिस्कशन भी होता है, कभी कभी जीडी भी होता है, और टेक्स्ट में होता है या वॉइस मैसेज में होता है। अभी बहुत दिनों से नहीं हुआ है। डियर, एनी डाउट? एक डाउट होना चाहिए यार, रेन वर्ब किसको मिली थी? सर निशा खुद ली थी। तो कैसे बनाया था बेटा सेंटेंस? कैन रेन द आफ्टर टुमारो। सॉरी, इट इज नॉट योर सेंटेंस। कैन इट रेन द डे आफ्टर टुमारो। क्या शुड में थोड़ा सा वो लग रहा था मुझे, बाकी सब सही था। शुड में थोड़ा सा मुझे लगा था। रेन का सेंटेंस जब भी अगली बार जिस पर आएगा उसको इट सब्जेक्ट ही लेना पड़ेगा, उसके साथ इट ही लगता है। गुड। निशा ने खुद बना लिया था कि किसी के सौजन्य से बनाया था? सर खुद बनाया। सर आज तो खुद ही बना लिया था। वाह यार। निशा, तुम्हारे एक टॉफी नोट कर लो। ओके सर। ठीक है, शायद ये तुम्हें पहली बार मिल रही होगी टॉफी, नहीं? यस। नोट करते जाना, जब भी आओगी तो ले जाना। ओके, should we go ahead? Yes, sir. We Yes, sir. should go ahead. So
Deepika, can you tell me what was the last verb? So the last verb was win, that is जीतना. Okay. हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, जब तक लिख रहे हैं तब तक एक सेंटेंस छोड़ देते हैं, सब लोग सेम सेंटेंस रिपीट करना. दीपिका से शुरू कर रहे हैं. Thereafter इंडिया वन द वर्ल्ड कप. उसके बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया. सेम रिपीट कर. Thereafter इंडिया वन द वर्ल्ड कप. इसके बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया. शिवांग. Thereafter इंडिया वन द वर्ल्ड कप. इसके बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया. दीदी Come again, Sivang, your Hindi. I could not listen because. उसके बाद इंडिया जीत गया. Thereafter, India won the World Cup. उसके बाद इंडिया जीत गया. Sorry. रोशनी. क्या जीत गया? In the match. मैच जीत गए. सॉरी वर्ल्ड कप. उसके बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया. रोशनी. Thereafter, India won the World Cup. उसके बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया. नेहा. Thereafter इंडिया won the वर्ल्ड कप. उसके बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया. निशा दी. Thereafter इंडिया वन द वर्ल्ड कप. इसके बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया. रूपल जी. Thereafter इंडिया won the वर्ल्ड कप. इसके बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया. Who is rest? Okay. Deepika ask. शिवांग, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर खत्म होना या समाप्त होना? द वर्ब फॉर खत्म होना या समाप्त होना शुड बी आई डोंट नो. दीदी व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर खत्म होना या समाप्त होना? The verb for खत्म होना या समाप्त होना should be get over. Rosni, what should be the second form of get over? The second form of get over should be got over. Sorry, come again. Got over. सॉरी, बकरी नहीं है वो. Rosni, come again one more time, please. Good. Goat. That is बकरी. किसी को पता है बकरी को अगर अपन गोट कहते हैं तो बकरे को क्या कहते हैं? He goat, and she goat. He goat, she goat. Goat. He goat, she goat. Google is not taking. This is she goat. This is he goat. Good. Rosni, please rectify your mistake. Get the second form of get over should be got over. Neha, what should be the third form of get over? The third form of
get over should be got over. निशा दी, what should be the verb for देखभाल करना? शिवांग, what should be the verb for देखभाल करना? वर्ब फॉर देखभाल करना शुड बी केयर। दीपिका है वाक्य। दीपिका दीदी, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर देखभाल करना? The verb for देखभाल करना should be take care, look after. The verb for देखभाल करना should be look after. Nidhi, what should be the second form of look after? The second form of look after should be looked after. Neha, what should be the third form of look after? The third form of look after should be looked after. दोस्तों, गेट ओवर सिंपल वर्ब नहीं है जैसे रेन, वैसे ही गेट ओवर। सो आई हैव गिवन हियर वन एग्जांपल। यू कैन आल्सो राइट डाउन द एग्जांपल जस्ट अंडर द वर्ब। आप इस उदाहरण को ठीक वर्ब के नीचे लिखिए और इसका क्वेश्चन कौन बना सकता है, बना के दिखाया जरा। Okay. दीपिका दीदी, कैन कोरोना गेट ओवर एनी टाइम? Yes, Shivang. Corona can get over anytime. दीपिका दीदी, क्या कोरोना कभी भी खत्म हो सकता है? हाँ शिवांग, कोरोना कभी भी खत्म हो सकता है। अब हम निधि? थोड़ा सा रूप बदल दे रहे हैं, वेट करो। हम निधि से पूछ रहे हैं अगला सवाल। आंसर सामने है, सवाल ध्यान से सुन लेना। निधि, व्हेन कैन कोरोना गेट ओवर? Sir, corona can get over anytime. कोरोना कब समाप्त हो सकता है? सर, कोरोना कभी भी समाप्त हो सकता है। I have to ask, sir. यस। Okay. शिवांग नहीं, अभी रोशनी। शिवांग से नहीं पूछो, शिवांग और दीपिका को आखिरी में रखो, इस बार रोशनी से पूछो। रोशनी, when can corona get over? Corona can get over anytime. रोशनी, कोरोना कब में खत्म हो सकता है? कोरोना कभी भी खत्म हो सकता है। नेहा, when can corona get over? कोरोना कैन गेट ओवर एनी टाइम। नेहा, कोरोना कब खत्म हो सकता है? दीदी, कोरोना कभी भी खत्म हो सकता है। निशा दीदी, व्हेन कैन गेट कोरोना गेट ओवर? कोरोना कैन टाइम गेट सॉरी come again. कोरोना कैन गेट ओवर एनी टाइम। दी, कोरोना कब खत्म हो सकता है? नया, कोरोना कभी भी खत्म हो सकता है। रूपल जी, व्हेन कैन कोरोना गेट ओवर? कोरोना कैन गेट ओवर एनी टाइम। रूपल जी, कोरोना कब खत्म हो सकता है? कोरोना कभी भी खत्म हो सकता है। हु इज रेस्ट? Nobody rest. And sir, दीदी, I am rest. okay, Shivang. Shivang, when can corona get over?
The corona can get over anytime. कोरोना कब खत्म हो सकता है? कोरोना कभी भी खत्म हो सकता है। दीपिका दीदी, when can corona get over? कोरोना कैन गेट ओवर एनी टाइम। दीपिका दीदी, कोरोना कब खत्म हो सकता है? कोरोना कभी भी खत्म हो सकता है। नेहा, have you written this? When Yes, can sir. go? Yes, sir. I have written this. सर एक्चुअली मैंने क्वेश्चन नहीं किया, मैं ऐसे ही बोल रही थी। Yes, sir. You should raise. Come again. I could not hear who asked the last question. Somebody was asking something. Sometimes you cannot hear me, but you can see the CC. What was the last interactive sentence, Rupal ji? Deepika, what was the last interactive sentence? सर द लास्ट इंटरेक्टिव सेंटेंस वाज व्हाई नॉट, दैट इज क्यों नहीं। Who will ask the first related question, please? Neha didi, which chapter is this sentence related? Be present. I think B chapter is related. Neha, please answer completely. दीपिका, तुम निशा से पूछ लो बेटा। निशा, which chapter this sentence related? From which chapter this sentence is related? No problem. निधि, तुम रूपल जी से पूछो। Rupal ji, which chapter is this sentence related? This chapter. Sorry, Rupal ji. Which chapter is related to this sentence? This sentence is related to रोशनी, तुम पूछो। रूपल जी, which chapter is this related to? ओके, शिवांग, तुम पूछ लो नेहा से। थैंक यू रोशनी। नेहा से पूछ लो। Neha didi, which chapter is this sentence related? B chapter is this sentence is related. शिवांग, दीपिका दीदी से पूछ लो। Deepika didi, which chapter is this sentence related? Shivang, this sentence is related to be present. अगला सवाल दीपिका। Nidhi, what is helping verb in this sentence? निधि, तुम रोशनी से पूछ लो। Rosni, what is the subject in this sentence? He is subject in this sentence. निधि, शिवांग से पूछो। She missed lipstick.
Shivang, what is the subject in this sentence? Didi, he is the subject in this sentence. Rupal Didi, what is the main helping verb in this sentence? Mm, Right candidate. this sentence is no helping verb. Is already subject में है. दीपिका ये सवाल निशा से करो, सेम क्वेश्चन। Nisha, what is the helping verb in this sentence? Deepika, sorry, I don't know. रोशनी ये सवाल तुम नेहा से करो। Neha, what is the helping verb in this sentence? Roshni Di is the helping verb in this sentence. वेरी नाइस। रूपल जी आप ये सवाल रोशनी से करो। Roshni, what is the helping verb in this sentence? Rupal ji, no helping verb in this sentence. काफी अच्छा उत्तर, काफी आगे तक आ गई, वेरी गुड। अब रोशनी तुम ये सवाल दीपिका दीदी से पूछ लो। Deepika Didi, what is the helping verb in this sentence? Roshni, there is no helping verb in this sentence. Next question. Shivang, what is in this sentence? Didi is his main verb. लिपस्टिक प्लीज शिवांग। Is the main verb. आगे एक्सटेंशन लगाओ। Okay. Rupal Didi, what is good? Rupal Didi. Good is a noun. शिवांग नेहा दीदी से पूछ लो। एक मिनट रूपल जी आप ये सवाल नेहा से पूछ लो। Neha, what is the नेहा तुम निशा से पूछ लो। Nisha Di, what is the code? What is good? What is निश- good? Neha, good is noun. निशा तुम रोशनी से पूछो। Rosni, what is good? Good is the adjective. Deepika Didi, what is for? बेटा एक मिनट रूपल दीदी से पूछो। Rupal ji, what is for? आपको अगर नहीं पता है तो समय बचाने के लिए आप उसी सवाल को किसी और से पूछो। Deepika, what is for? It's preposition. Shivang, Shivang, what is nothing in this sentence? It is object. तुम हर बार एक्सटेंशन या तो नहीं बोलते हो या हमें सुनाई नहीं देता है, पता नहीं क्या बात है। It is object or extension. दीपिका पूरे सेंटेंस फिर से बोलना जरा, देखें क्या। I got it. It is निधि the. तुम पूछो। Sir, I got it. I got it. It is the object in this sentence.
Next, last question. Can anybody guess the Hindi meaning of this interactive sentence? Sir, can I? ही इज गुड फॉर नथिंग, दैट इज वह किसी काम का नहीं। आप किसी का नाम ले लो तो वो भी बोल दे। रोशनी, ही इज गुड फॉर नथिंग, वह किसी काम का नहीं है। नेहा, ही इज गुड फॉर नथिंग, वह किसी काम का नहीं है। निशा दी, ही इज गुड फॉर नथिंग, वह किसी काम का नहीं है। रूपल जी, ही इज गुड फॉर नथिंग, वह किसी काम का नहीं है। दीपिका, दीपिका लेफ्ट। इज एनीबडी रेस्ट? I am rest. He is good for nothing. नहीं, हम नया राउंड शुरू कर रहे हैं, तो भी से शुरू कर रहे हैं। शिवांग, हु इज गुड फॉर नथिंग? So can I change the subject? बदलना ही पड़ेगा ना बेटा, आंसर में तो नया कुछ यहाँ से राइट साइड से रखना ही पड़ेगा। हु इज गुड फॉर नथिंग? Dharmen, हाँ, यस। Dharmen is good for nothing. कौन किसी काम का नहीं है? Sir, Dharmen किसी काम का नहीं है। थैंक यू। दीदी, who is good for nothing? एनी एरा गेरा नथु खेरा आर गुड फॉर नथिंग। दीदी, कौन किसी काम का नहीं है? कोई भी एरा गेरा नथु केरा किसी काम का नहीं है भैया। रूपल जी, हु इज गुड फॉर नथिंग? माय कुक इज नॉट गुड फॉर नथिंग। कम अगेन रूपल जी। माय कुक इज गुड फॉर नथिंग। रूपल जी, कौन किसी काम का नहीं है? मेरा कुक खाना कोई काम का नहीं है। निशा, हु इज गुड फॉर नथिंग? रीना इज गुड फॉर नथिंग। कौन किसी काम का नहीं है? रीना किसी काम की नहीं है। नेहा, हु इज रेस्ट? आई एम रेस्ट। नेहा, हु इज गुड फॉर नथिंग? दीदी, आई थिंक कचड़ी वाला इज गुड फॉर नथिंग। नेहा, कौन किस काम का नहीं है? जी, शायद कचड़े वाला किसी काम का नहीं है। हु इज रेस्ट? दी, रोशन दी, हु इज गुड फॉर नथिंग? रोशन दी, चलो, तुम्हारा सवाल तो हो गया। अब रोशनी दी का जवाब दो। सर, आई हैव टू गिव वन मोर आंसर। गिव। Yeah, please ask to me. okay, Nidhi, who is good for nothing? Yeah, they both are good for nothing. Please complete. दीदी, कौन किसी काम का नहीं है? वे दोनों ही किसी काम के नहीं है। Okay, ladies and gentlemen, thank you for joining. See you tomorrow. God bless you. Bye, Thank you, bachcho. Good night. Good night, sir. Good night.